سب سے پہلے تو میں تمام میڈیا والوں کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تک آئے. میں اپنا پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے شہدائے مستن، شہدائے درین گڑھ، نوابزادہ میر سراج خان شہید اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے سفید ریش نوجوان اور معصوم بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ملک کی سالمیت اور ضلع مستن کے عوام کی خوشحالی کے لیے اپنے جان کو نذرانہ پیش کیا. اور اس کے بعد ضلع مستن کے ان قبائل جنہوں نے ضمنی الیکشن PB 35 پہ بلوچستان میں پارٹی اور میرا ساتھ دیا، ان سیاسی جماعتوں کا جنہوں نے میری حمایت کی، اور ان آزاد امیدواروں کا جنہوں نے ہمارا بھرپور حمایت کیا اور ہم ضمنی الیکشن میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا. اور ہار جیت الیکشن کا حصہ ہے. بلوچستان میں پارٹی اور ہمارے اتحادیوں نے بھرپور الیکشن میں حصہ لیا اور بھرپور مقابلہ کیا. اس کے بعد میں نواب اسلم رحسانی صاحب کو ان الفاظ کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بلوچستان کے دو بڑے سیاسی جماعتوں کا سہارا لے کر فتح حاصل کیا. کچھ دنوں سے پریس کانفرنسز اور دیگر کچہریوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ نواب اسلم رحسانی جنہوں نے PB 35 سے فتح حاصل کی، ان کا نشانہ بلوچستان عوام پارٹی اور اس کا امیدوار جو کہ میں اس الیکشن میں حصہ لیا میں ہی رہا ہوں. جیسے کہ وہ اپنے مختلف پریس کانفرنس میں کہتے رہتے ہیں کہ سرکار نے اور سرکار کی مشینری نے بلوچستان عوام پارٹی کا کے امیدوار کو جتوانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے. تو میں ان کے ان سوالات اور ان خدشات کا جواب دینے کے لیے آج آپ سب کو بلایا. اگر وہ یہ الزام ہم پہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہم نے ضلع مستن میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کیا، شہید میر سراج خان کے مشن کو آگے چلایا، یا مستن کے عوام کی خوشحالی کے لیے ہم نے آواز اٹھایا اور بلوچستان عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے ان کا مقابلہ کیا، یا صوبہ بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی کی گورنمنٹ ہے، یا اس بیس پہ انہوں نے الزام لگایا تو مجھے قبول ہے. ہماری گورنمنٹ ہے، اس چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم نے پاکستان زندہ باد نعرہ لگایا ہے اور اس بیس پہ انہوں نے ہم پہ الزام لگایا تو میں فخر سے کہتا ہوں میں ایک پاکستانی ہوں اور پاکستانی رہوں گا اور فخر سے پاکستان کا جھنڈا لہراتا رہوں گا. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ضلع مستن میں اس حوالے سے پریشان ہوں کہ یہ بندہ اس نے اتنے ووٹ کیسے لیے. تو میں محترم کے گوشہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق بنگوزی قبائل سے ہے. ضلع مستن میں رہنے والے سینکڑوں قبائل ہیں جن میں سب سے زیادہ شمار بنگوزی اور شاہوانی قبائل کا ہوتا ہے، اور ہمارا عدو دربہ شیشار سے لے کے اسپلنجی، دشت، مستن سٹی، نوزہ، ٹھانٹ تک ہمارے قبائل پھیلے ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے بھی کسی نہ کسی صورت میں بنگوزی قبائل نے نواب اسلم رحسانی یا دیگر جماعتوں کا مقابلہ کیا ہے. اکثر و بیشتر مختلف شہروں میں ہم نے فتوحات بھی حاصل کیے ہیں یہاں سے. تو جہاں تک وہ کہتے ہیں کہ ہماری ووٹ یا ہمارا جو ٹارگٹ تھا ہم نے 10,000 میکسیمم ہم نے ووٹ لیے ضلع مستن سے، میں ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جو ان کا حلقہ ہے، حلقے سے مراد جہاں پہ ان کا گھر ہے، وہاں سے بھی ہم نے ان کے ساتھ کانٹے دار مقابلہ کیا ہے. 7 پولنڈز میں سے 4 پولنڈ میں نے جیتے ہیں، 3 پولنڈ انہوں نے بمشکل جیتے ہیں. وہ اپنے پولنڈز اپنے علاقے کے جو آس پاس گاؤں ہیں جو اس کا یونین کونسل کہلایا جاتا ہے، وہاں سے انہوں نے 1500 ووٹ تک نہیں لیے، لیکن دور دراز ایریے جو 50 کلومیٹر دور کر دیکھا وہاں سے وہ 2700 ووٹ لیتے ہیں. دھاندلی اور تشویش کی بات تو یہاں واضح ہوتی ہے کہ اگر میں اسپلنجی سے 200 ووٹ لیتا اور ٹھانٹ سے 1000 ووٹ لیتا تو شاید یہ شرط مجھ پہ ضرور لاگو ہوتا. جہاں تک کہا جاتا ہے کہ دھاندلی کی صورت کردے ٹاپ میں میرے کارکنوں کو زخمی کیا گیا
3 बंदे गिरफ्तार भी हैं। मैं खुद पहुंचा वहाँ पे फायरिंग हुई है, छापेमारी हुई है। अभी भी डिप्टी कमिश्नर और एसी प्रदेटाप और तहसीलदार दश ने उन पे एफआईआर भी लॉन्च किया है। वो बंदे अभी भी थाने में हैं, वो पकड़े जा चुके हैं। जिनका कहना है कि उन्हें काट दिया था, अगर इनका मुकाबला ठप्पे या धांधली से नहीं किया जाएगा तो ये लोग हमसे आबाओ अजदाद ये सीट छीन लेंगे। मैं नवाब साहब को माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि लोग आपसे और आपके इत्यादियों से मायूस हो चुके हैं, क्योंकि जिस बंदे ने एक वज़ीर आला होने के बाद भी अपने इलाके में तरक्की ना करवा सका, लोगों को ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं कर सका, आज जब लोगों से मायूस हो चुका है तो वो हम पे इल्ज़ामात लगा रहा है, जीतने के बावजूद कि हमने धांधली की है। उनके चेहरों की मायूसी और उनके बोटलाहट के अल्फाज से लगता है कि शायद वो आने वाले दौर में मुझे ही अपना सियासी हरीफ समझते हैं। मैं नवाब साहब से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये जो ज़िमनी इलेक्शन दोबारा हुए, इसी सीट पे नवाबजादा मीर सिराज खान जो उनके भाई हैं, छोटे भाई थे, वो शहीद हो चुके हैं। उन्होंने सिर्फ इसलिए उनका मुकाबला करना चाहा क्योंकि वो चाहते थे कि मस्तून के अवाम और मस्तून के लोगों में हम खुशहाली लाएं। जो बेरोज़गारी वहाँ पाई जाती है, उनके नौजवानों पे जो चेहरों पे मायूसी पाई जाती है, हम उनको दूर करें, क्योंकि पिछले अदवार में यहाँ पे मुलाजमतें बेची गई हैं, यहाँ पे बुनियादी सहूलतों से लोगों को मायूस किया जा चुका है। अपने चंद महदूद आसपास के लोगों को सिर्फ नवाजा गया, जिनकी साफ मिसालें आपको ज़िला मस्तून में ज़रूर मिलेंगी। उसके अलावा इस पिरंजी देख लें, पीने को पानी नहीं है, पढ़ने पढ़ाने को स्कूल नहीं है। हमारे दूर दराज गाँव में ऐसे इलाके हैं, चाहे दुले हो, बशाम हो, टूली हो, टर्दिटाप के गुरना इलाका हो, वहाँ डिस्पेंसरी तक नहीं है। अगर हमारी माँ बहनों की तबीयतें ख़राब हों तो इंजेक्शन लगाने वाला वहाँ कोई नहीं, उसे वहाँ से उठा के या तो मस्तून शहर लाया जाता है या तो फिर कोयटा। तो इन तमाम अगर आप मायूसियों को देखें तो वो लोग इनको रद्द कर चुके हैं। अगर ये 3 बड़े कुव्वतें एक साथ नहीं होते तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी को हराना इनकी बस की बात नहीं थी। मैं आज भी दावे से कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ इन 3 बड़े कुव्वतों को, आए एक एक करके हमारा मुकाबला करें। खुदा गवाह है, ये हमें जीत नहीं सकते, क्योंकि अवाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी और हमारे साथ हैं। वहाँ के लोग हमें चाहते हैं, वहाँ के लोग इनको रद्द कर चुके हैं, और आने वाला दौर इंशाल्लाह ज़िला मस्तून में बलूचिस्तान अवामी पार्टी का होगा। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम चीफ ऑफ सारावान नवाब मोहम्मद असलम रहसानी साहब ने एक हसास कबैली मामले को भी छेड़ा कि सरदार नूर अहमद बंगुजी कबाइल का सरदार नहीं, कोई और शख्स है। तो मैं मीडिया के थ्रू अवाम के गोश गुज़ार करना चाहता हूँ, बंगुजी कबाइल एक तारीख़ रखता है, फिर बंगुजी कबाइल में गोरा मजीद तारीख़ रखता है। जो शुरू से ही बंगुजी कौम का सरदार रहा है, सरदार है और सरदार रहेगा। जिस मोहतरम का वो नाम लेते हैं कि वो बंगुजी कबाइल का सरताज या सरदार है, तो मैं कहना चाहता हूँ 2003 में जब आप उस मोहतरम की दस्तारबंदी कर रहे थे, बंगुजी कौम के तमाम ठठरी और तमाम सफ़ेदरीश आपके पास आए कि आप रस्म व रवाज और रिवायत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, ये ना तो हमारा वडेरा है ना हमारा सरदार है। आपने इन अल्फाज के साथ उन लोगों को वापस किया कि मैंने उसके मरहूम वालिद वडेरा बहादुर खान के साथ एक कमिटमेंट किया है कि ये अगर मेरा इलेक्शन में साथ देंगे तो मैं इसके लाडले बेटे की दस्तारबंदी करूँगा। बिल्कुल इसी तरह आपने दस्तारबंदी की। लेकिन बलोची रस्म व रवाज में सारावान के जितने सरदार और खान अफ्खल्लात खान सुलेमान खान ने वडेरा बहादुर खान के बड़े बेटे मरहूम वडेरा अब्दुल सलाम की दस्तारबंदी की, जिसमें बंगुजी कबाइल के तमाम ठटरी मौजूद थे, और आपके वो इलेक्शन वाले सरदार को रिजेक्ट किया गया। बिल्कुल इसी तरह आज से 3 साल पहले बंगुजी तमाम ठटरीज ने मेरी दस्तारबंदी की एज ए सरदार।
اور बंगुजी कौम के तमाम टकरियों ने ये बात तस्लीम की कि बंगुजी कौम का असल सरदार गोरामजई से है और आपके सामने इस टाइम में बैठा हुआ हूँ। यही शायद इनमें से आप जितने बैठे हैं ये तमाम मीडिया वाले वहाँ मौजूद थे। हमारी दस्तरबंदी हुई, हज़ारों लोगों ने शिरकत की वहाँ पे, बाकायदा रस्म और रवाज के मुताबिक दस्तरबंदी हुई। नवाब साहब के इन अल्फाज से मेरा और मेरे कौम के लोगों की दिल आज़ारी हुई। मैं ज़रूर उनसे कहना चाहता हूँ, आप बड़े हैं, आप चीहो सारावान हैं, आप रिवायत की पासदारी करें। अगर मैं इलेक्शन में आपका साथ देता तो शायद आप ये दस्तार के चाल वल मेरे सर पे भी बांधते और शायद आप मुझे भी तस्लीम करते। बंगुजी कौम का वडेरा आज भी हमारे ज़ैली ताइफ़े सैदजी से है। उसके भाई का बेटा वडेरा अहमद खान स्पिलंजी बैठा है, ज़िंदा है, वो वडेरा है। और बंगुजी कौम का सरदार आपके सामने इस टाइम सरदनगुरे में बैठा हुआ है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोई और दिगर ना वडेरा है ना हमारा कोई सरदार है। इसके अलावा जहाँ तक उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक सिब्बी से है, तो मैं अपने बुजुर्ग भाई नवाब रईसानी साहब को कहना चाहता हूँ, ताल्लुक रिहाइश एक अलग चीज़ है, कबाइल वोट सियासत एक अलग चीज़ है। हमारी बुनियाद स्पिलंजी से है। स्पिलंजी बंगुजी कौम का हेड क्वार्टर कहा जाता है, जहाँ पे मेरी कबाइल रहता है। दश्त में रहते हैं, मस्कुन सिटी में रहते हैं, नौजे कानट तक रहते हैं और उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। इसके साथ साथ मस्तून में रहने वाले दिगर तमाम कबाइल से लोगों ने हमारा साथ दिया। सादात ने साथ दिया हमारे साथ, लब्बैक या रसूलुल्लाह पार्टी ने हमारा साथ दिया। 11 आज़ाद उम्मीदवार मेरे हाथ में दस्तबरबाद हुए, उन सब ने मेरा साथ दिया। इन सब का मजमुआ देख तो मैं समझता हूँ 10,000 वोट हमने फिर भी कम लिए हैं, क्योंकि आखिरी दिनों में इन्हीं हमारे मुखालफी ने, जो कि आज तक अपने इक़्तिदार में लोगों को चाय तक नहीं पिलाते थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ट्रांसफार्मर बांटे गए, शमसी बांटे गए, ट्यूबवेलें बांटी गई। उसके बावजूद भी उन्हें 2 बड़ी जमायतों का सहारा लेना पड़ा। मैं नवाब साहब से कहता हूँ कि आपके अपने घर के 4 दीवारी में आपका भाई, जो कभी ज़िला कच्ची से इलेक्शन लड़ता है, कभी कोयटा के PB 31 से इलेक्शन लड़ता है, तो बराए मेहरबानी ये सवाल कभी उनसे भी पूछ लिया करें कि आपका गांव कहाँ पे है, आपका घर कहाँ पे है और आप इलेक्शन किस हल्के से लड़ रहे हैं। तो पार्टी के फैसले अपनी जगह पे,